Hello everyone, welcome back to my channel. So, in this video, we are going to start class 8 science chapter number 12 some natural phenomenon. So, without any wait, let's get started. So, in class 7th, you have studied about three natural phenomena that were winds, storms, and cyclone. But in class 8th, you will study about two other phenomena that is lightning and thunder are one part, and earthquake. So let's get started with the first heading of your chapter. So the first heading of your chapter is lightning. What is lightning? So before starting about lightning, we must discuss about that. Have you ever seen an electrical spark when winds were blowing at a huge scale? Have you ever seen electrical spark on the wires when winds are blowing on a huge scale? Have you ever seen electrical spark when the wires have become loose? So, when I discuss these two questions, these two statements, there is a term which came, that is electrical spark. What is electrical spark? Electrical spark means a light, a light which is wait a minute, a light which is produced by electrical discharge. Means when there is no proper circuit of electricity, the discharge means both the charges are not connected, so a light and a crackling sound is produced. That light and crackling sound is called electrical spark. So what is lightning? A lightning is just a electrical spark, but on a huge scale. Lightning is also a discharge of charges. Is also an electrical spark, but on a huge scale. On a huge scale. So let's move towards history. What is the history of lightning? So old times, at old times, people used to think that lightning is done by God because he's angry on us. Lightning is a result of God when he was angry on us and he was showing his wrath on us. And people used to afraid of lightning because they were very afraid of God, because they were thinking that God is very angry on us. He will be punishing us by lightning. But nowadays we are not afraid of lightning. We know that lightning is not a phenomenon which is done by God, and we also have precautions to save ourselves from these effects. Lightning is produced.
question arises that how is lightning produced? How is lightning produced? A question arises. We know that lightning is an electrical spark, but how that huge electrical spark is produced? The simple answer is lightning is produced by accumulation of charges. Accumulation of charges in a cloud. Lightning is produced by the accumulation of charges in the cloud. Means, for example, here is a cloud and another cloud. The accumulation of charges. One cloud is containing positive charge, positive, positive, positive. Another cloud is containing negative charge. We will study how which cloud is containing positive, why some cloud are containing positive or negative charge. We will study it later, but simply we will understand that the accumulation of charges of a cloud means if these two will strike, so lightning will take place. Accumulation means the striking or the mixing of charges in a cloud at a huge scale is produced lightning. The next topic of your book is the sparks that Greek knows. Okay. The spark that Greek knows. Let's understand this heading. Spark, I have explained you. Electrical spark, the result which is produced by electrical discharge in a circuit. That is spark that Greeks knows. Greeks are the people who are living in Greece. They are known as Greeks. Spark that the Greeks know means जो स्पार्क जो ग्रीक लोगों को पता है नहीं, ये पास्ट के बारे हिस्ट्री के बारे में कह रहा है। जो पुराने ज़माने में ग्रीक के लोगों को जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क के बारे में पता था वो इस हेडिंग में है। तो क्या पता था उनको स्पार्क के बारे में? At 600 BC they know that amber. What is amber? Amber is a kind of resin. When rubbed with for attracted light objects such as hair. Around 600 BC, Greeks were aware of electrical spark in the terms that they know amber. Amber is a kind of resin. When amber was rubbed, जब एम्बर को इसके साथ फर के साथ रब करा जाता था तो फिर वो एम्बर क्या करता था, वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता था। तो इतना ग्रीक्स को पता था। और एक और चीज़, अनदर पॉइंट, ग्रीक्स को इतना ही पता था। और हम एक और चीज़ है जो हम लोग नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और इलेक्ट्रिकल स्पार्क। दैट इज़ व्हेन वी टेक ऑफ आवर क्लोथ्स आवर हैंड्स स्टैंड्स ऑन वन एंड। ये लड़कों ने ज़्यादा नोटिस नहीं करा होगा पर लड़कियों ने नोटिस करा होगा, जब हम अपने कपड़ों को उतारते हैं तो फिर हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। लड़कियों के बाल देखो आपने, वो खड़े हो जाते हैं, हर एवरी सिंगल हेयर वो खड़ा हो जाता है। ये क्यों होता है ये भी हम समझेंगे। आपने रील्स में भी देखा होगा, ये लोग कहते हैं जब लाइटनिंग आने वाली होती है या फिर कोई थंडर आने वाला होता है
बहुत ह्यूज स्केल में, तो फिर लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं। जब टॉर्नेडो भी आ रहा होता है तो लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, ये सिग्नल होता है कि कोई नेचुरल फिनोमिनन होने वाला है। तो फिर ये बहुत स्मॉल स्केल में है। ये है ये जो आजकल विंटर के टाइम में नोटिस करा होगा कि व्हेन वी टेक ऑफ आवर क्लोथ्स वी हेयर अ क्रैकलिंग साउंड we hear a crackling sound and can see spark in dark। जब हम अपने कपड़ों को उतारते हैं तो फिर हमको एक क्रैकलिंग सी साउंड सुनाई देती है। तो साउंड है क्या, वो साउंड आई कहाँ से, ये भी हम समझेंगे। और अगर हम अंधेरे में उतारेंगे कपड़े तो फिर हमको स्पार्क से भी दिखेंगे, रोशनी, बिजली की थोड़ी सी रोशनी, जैसे जुगनू करता है ना रोशनी, वैसे ही हमको रोशनी भी देखने को मिलेगी। अब ये क्यों आती है, कहाँ से आती है, ये भी समझेंगे हम। तो फिर एक साइंटिस्ट है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने 1752 में ये प्रूफ करा कि जब हम अपने क्लोथ्स को निकालते वक्त जो क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है और लाइटनिंग होती है, ये दोनों के दोनों सेम फिनोमिनन है। तो लोगों को तो ये विश्वास नहीं हुआ, तो लोगों को इसको विश्वास करने में बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के ज़माने में भी सब गॉड पे भरोसा करते हैं, भगवान पे भरोसा करते हैं, रिलीजन बेसिस करते हैं। तो फिर वो तो समझते हैं कि ये कोई हमारे वो बिलीव्स पे हर्ट कर रहा है, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा है। तो फिर लोगों ने इसकी बात नहीं सुनी और उनको ये रियलाइज़ करने में बहुत टाइम लगा। आज के भी बहुत सारे अनएजुकेटेड लोगों से अगर आप पूछोगे कि लाइटनिंग क्यों होती है, तो वही ऐसे कोई रिलीजन टर्म में आंसर देंगे, पर ऐसा नहीं है। आई एम नॉट शोइंग हेट टुवर्ड्स रिलीजियस सपोर्टर्स, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस सपोर्टर्स, बट स्टिल आपको थोड़ी जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए। सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो फिर हमको जब लाइटनिंग के बारे में समझना है, इस चैप्टर में क्या है, हमको लाइटनिंग के बारे में समझना है। तो लाइटनिंग हमको इजीली समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लाइटनिंग में चार्ज का बहुत रोल होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चार्ज क्या होता है। तो फिर ये हमको पता है, पर हमको अब चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करना है। तो फिर सबसे पहले हम चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। प्रॉपर्टीज समझ में आई चार्ज की, तब फिर हम लाइटनिंग की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ charges are produced by रबिंग। फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, चार्ज रब करने से प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब हमने इन दोनों ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ से रब करा तो फिर इन दोनों ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रोड्यूस हो। चार्ज मैंने आपको बता रखा है, चार्ज होते हैं दो टाइप के, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और एक और चार्ज होता है जो पॉजिटिव चार्ज वाले को प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और एक और होता है वो न्यूट्रॉन होता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता, नन होता है उसका चार्ज। तो इसको हम छोड़ते हैं। अभी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज, अगर हम व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स विद ईच अदर दे गेन चार्जेस। जब भी हम किसी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं सेम चीज़ से, तो फिर वो चार्ज प्रोड्यूस करती है। और हमको ये चीज़ तो पता है कि पॉजिटिव चार्ज repel each other, positive negative and negative charge repel each other, but positive and negative charge attract each other। इसका कंक्लूज़न ये है कि
like charges repel, unlike charges attract each other. तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी. So moving towards the next property of your chapter. Next property is types of charges and their interaction. Types of charges and their interaction. टाइप्स ऑफ चार्जेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एंड देयर इंटरेक्शन मतलब उनका मीट करना, ये भी मैंने रफली आपको बता दिया है. जो पर अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तब ये हेडिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमको इसमें समझना है कि कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज लगता है. देखो, जैसे अगर टू सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये दोनों सेम बैलून है, ठीक है. इन दोनों ऑब्जेक्ट को, ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट है, सेम मटेरियल से बन रखे हैं. इन दोनों को मैंने किसी क्लॉथ से या पॉलीथिन से रब करा. तो फिर जब मैंने इनको रब करा तो इस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ. दोनों में सेम चार्ज प्रोड्यूस हुआ, डेट इज़ पॉजिटिव. ठीक है. इससे हमको ये कंक्लूज़न मिलता है, जब भी हम सेम मटेरियल को सेम थिंग से रब करेंगे तो फिर उनमें चार्ज प्रोड्यूस होगा और वो चार्ज सेम होगा. अगर हम इन दोनों ही बलून को हैंग करेंगे और उनको रब करेंगे तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज होगा. हमको पता है सेम चार्जेस रेपेल ईच अदर, तो फिर ये दोनों बलून इधर इधर मूव करेंगे, सिंपल एज इट इज़. और एक और है, जैसे ये बलून है और यहाँ पर मैंने एक पेन ले रखा है, मैंने दोनों को एक क्लॉथ से रब करा, ठीक है. तो फिर जो बलून पे जो चार्ज एक्वायर हुआ वो सेम चार्ज इस पेन पे एक्वायर नहीं हुआ, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट मटेरियल्स, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर मेड अबाउट डिफरेंट मटेरियल. तो फिर जो उन दोनों में चार्ज एक्वायर हुआ वो दोनों के दोनों डिफरेंट है. तो फिर हमको पता है डिफरेंट चार्जेस मीन्स अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो फिर ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. यही है इस हेडिंग में. और एक और चीज़ है कि जैसे ये बैलून है, कोई सब्सटेंस है, उसको मैंने किसी चीज़ से रब करा, तो फिर जो चार्ज इस सब्सटेंस में होगा उसका अपोजिट चार्ज इस सब्सटेंस में होगा. जैसे मैंने इस बलून को इस क्लॉथ से रब करा तो फिर इस बलून में तो पॉजिटिव चार्ज आ गया और तो फिर इस क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. और एक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि द इलेक्ट्रिकल चार्जेस generated by rubbing is static. The electrical charges produced by rubbing is static. स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. मतलब जब भी कोई चार्ज कोई किसी बॉडी में आता है रब करने की वजह से तो फिर वो रेस्ट पे होता है, वो स्टैटिक होता है. वो अपने मूवमेंट नहीं करता. वो मूवमेंट जब भी कोई सब्सटेंस रब करने से चार्ज एक्वायर करता है तो फिर उसका चार्ज स्टैटिक होता है. और एक सर्किट बनाते हैं. यहाँ पर बलून है, यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं, ठीक है. जब भी ये सर्किट स्टार्ट होगा और ये बलून बोल रहा मैं, बल्ब ग्लो करेगा. जब ये बल्ब ग्लो करेगा तो ये हॉट होगा. और ये हॉट कैसे हुआ? ये हुआ बाय द मोशन ऑफ चार्जेस. मैंने आपको पहले चैप्टर में बता रखा है कि ये बल्ब ग्लो क्यों होगा.
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब चार्ज तो है ही। मतलब जब जो सर्किट में जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो क्यों कर रहा है ग्लो? बाय द मोशन ऑफ charges. Moving towards the next heading of the chapter, that is transfer of charge. Now what is transfer of charge? इसको समझाने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, तो फिर उसी एक्टिविटी को मैं करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। मीन्स ये एक कंटेनर लेना है, उस कंटेनर के ऊपर कार्डबोर्ड लगाना है। क्या एक ग्लास कंटेनर ले लिया, चलो ग्लास कंटेनर। यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड, और उस कार्डबोर्ड में एक होल कर दिया, और उस होल में एक मेटल रॉड को डाल दिया, मेटल रॉड, थिन मेटल रॉड को डाल दिया। ठीक है, एक मेटल रॉड को डाल दिया, और उस मेटल रॉड से दो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। आपकी मम्मी जब आप स्कूल जाते हो तो फिर आपको खाना एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके देती है ना, वो पतला पतला सा सिल्वर कलर का एल्यूमिनियम। तो उसी के दो एल्यूमिनियम फॉइल लिए, दो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स लिए। कितने? 4x1 उसके मतलब, और उसके लेंथ के दो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स लिए, एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स। ठीक है, तो फिर अब हमने क्या करा, जो ये मेटल रॉड है, इसको हमने, इस मेटल रॉड को हमने एक दूसरे मेटल रॉड से इंटरेक्ट कराया। ये जो ये मेटल रॉड है उसको हमने ग्लास रॉड से इंटरेक्ट कराया। उस ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज था। हमने क्या करा, सबसे पहले इसको प्रिपेयर करा, तो फिर एक ग्लास के रॉड को लिया, उसको रब करा। ठीक है, उसको हमने रब करा क्लोथ से, तो फिर उसमें चार्ज एक्वायर हो गया। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। हमने, तो फिर यही है वो ग्लास रॉड, इसमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो गया। तो फिर हमने इसको इससे टच कराया, इसको इंटरेक्ट कराया। तो फिर इंटरेक्ट करने से क्या हुआ? हमको पता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो फिर हमने इसको अट्रैक्ट कराया। तो फिर ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये इस मेटल रॉड से चले गया, ये यहाँ तक पहुँच गया। ये चार्ज यहाँ तक पहुँच गया। तो फिर यहाँ से इन दोनों एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स में चले जाएगा। इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स में भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इस एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे भी पॉजिटिव चार्ज हो गया। आगे समझाने से पहले मैं आपको फिर से समझाता हूँ। पहले हमने क्या लिया, ग्लास लिया, उस पर हमने एक कार्डबोर्ड को लगाया, कार्डबोर्ड में छेद करा, तो फिर उससे हमने एक मेटल रॉड अटैच करी, मेटल रॉड में हमने दो एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स लगाए। तो फिर हमने क्या लिया, एक अलग से एक ग्लास रॉड लिया, उस पर चार्ज एक्वायर करा, उसको रब करा, तो फिर हमने उसको इंटरेक्ट कराया। किससे? मेटल रॉड से। हमको पता है मेटल्स ने चार्ज ढंग से पकड़ लिया, और वो चार्ज एल्यूमिनियम के दो स्ट्रिप्स में चला गया। तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज लिया था उसने, तो एल्यूमिनियम की दो स्ट्रिप्स में पॉजिटिव चार्ज हो गया। एंड वी नो डैट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रेपेल ईच अदर। तो फिर ये रेपेल हो जाएंगे, ये दोनों दूर हो जाएंगे। और एंड दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप इज a device which tests that whether an object is carrying a charge or not। एक ऐसा डिवाइस जिससे हमको पता चलता है कि किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है।
जैसे हमने इसको कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया, इसको उसका इंटरैक्ट कराया मेटल रॉड के साथ, अगर ये दोनों रेपेल कर रहे हैं तो मतलब यह है कि उसमें चार्ज है। अगर वो रेपेल नहीं कर रहे हैं तो मतलब उस ऑब्जेक्ट में चार्ज नहीं है। जो ये वाले इलेक्ट्रोस्कोप है ना, इसने हमारे तीनों के तीनों चार्ज की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा। सबसे पहले क्या हुआ, रबिंग से चार्ज प्रोड्यूस हुआ, पहला ये इसको भी सेटिस्फाई कर दिया। चार्ज का इंटरेक्शन ये भी सेटिस्फाई कर दिया। और ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ये भी सेटिस्फाई कर दिया। फिर इससे हमको ये कंक्लूज़न मिलता है कि बहुत तीन कंक्लूज़न मिल रहे हैं क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर ऐसे हम एक इलेक्ट्रोस्कोप बना सकते हैं। अगर हमको किसी चीज़ को चेक करना है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है कि नहीं करती है, तो फिर उसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। सो अनदर हेडिंग इज़, आपकी बुक में नहीं है वो, पर तब भी दे रखा है कि अर्थिंग के बारे में। अर्थिंग, सो नाउ व्हाट इज़ अर्थिंग? the process the process of transferring charges to earth is called earthing। नाम में ही लिखा हुआ है अर्थिंग। जब हम किसी चार्ज को अर्थ तक ले जाते हैं, अर्थ को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रोसेस को अर्थिंग कहते हैं। हम क्यों करते हैं? हमको मज़ा थोड़ी ना आता उसको ट्रांसफ़र करने में। हम इसलिए करते हैं क्योंकि अर्थ क्या होता है, अर्थ में सॉइल होता है एंड सॉइल इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर अगर हमको अपने आप को सेफ रखना है तो फिर हम चार्जेस को अर्थ में डालते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे डीप में। पर अर्थिंग क्यों करी जाती है, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये क्यों करी जाती है, ताकि हम सेफ रहे फ्रॉम लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट पड़ता है, ताकि हम सेफ रहे, वो सारा चार्ज अर्थ में चले जाता है। तो इसलिए अर्थिंग करी जाती है। वो एक प्रोसेस होती है, वो उससे सारे के सारे चार्जेस अर्थ में चले जाते हैं। नेचुरली नहीं जाते हैं, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है घर पे, तभी वो जाते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर बुक इज़, जब लाइटनिंग की सिचुएशन डेवलप होती है तब जो ग्राउंड में जो एयर होती है, हॉट एयर, देखो नॉर्मली क्या होता है, सन है, वो सन ग्राउंड में अपनी हीट रेस को ट्रांसफ़र करता है और वो हीट रेस ग्राउंड में तो पड़ती है, साथ साथ एटमॉस्फेयर एयर में भी रहती है। ठीक है, तो फिर जो ये हीट एयर होती है वो कोल्ड एयर से क्या होती है, हल्की रहती है, तो फिर वो ज़्यादा आसानी से ऊपर उड़ती है। तो फिर जब थंडर स्टॉर्म की सिचुएशन डेवलप होती है, तब ये हीट एयर ऊपर आती है। ऊपर क्यों आती है, हमको पता है, जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर आती है, और रेन ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं, और तब फिर रेन ड्रॉपलेट्स नीचे आते हैं। तो फिर ये ऊपर नीचे, ये कारण क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में जो चार्जेस होते हैं उस स्प्रेड हो जाते हैं, मतलब बट जाते हैं, इक्वली बढ़ जाते हैं। तो फिर जो ऊपर जाते हैं, जो क्लाउड ऊपर प्रेजेंट होते हैं, देखो जो क्लाउड ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो क्लाउड नीचे प्रेजेंट होते हैं उनमें नेगेटिव चार्ज होता है। फिर से समझाता हूँ, जब कभी भी लाइटनिंग की सिचुएशन डेवलप होती है, तब क्या होता है, तब जो एटमॉस्फेयर जो हीट एयर होती है, हीट एयर करंट्स होते हैं, वो ऊपर आते हैं और वाटर की ड्रॉपलेट्स नीचे आती है।
जो ऊपर जाते हैं तो फिर ये जो इस ऊपर और नीचे एयर करंट्स का ऊपर जाना और वाटर ड्रॉपलेट्स का नीचे आना, ये इस मूवमेंट के कारण जो चार्जेस का सेपरेशन हो जाता है। तो फिर जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो ऊपर पहुंच जाते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नीचे पहुंच जाते हैं। नीचे कहाँ पर? क्लाउड्स में। ठीक है, वो भी कितने अमाउंट में? बहुत ह्यूज अमाउंट में। तो फिर जब इन चार्जेस का, वो भी जो देखो, जो एक क्लाउड है तो फिर चार्जेस कैसे, जो अपर एंड में, अपर ऊपर वाले क्लाउड के बाउंड्रीज में बहुत अमाउंट में चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। तो फिर ये दूसरा क्लाउड है, जो नीचे वाला क्लाउड है उसमें नेगेटिव चार्ज है और जो ऊपर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। जब ये चार्ज आपस में इंटरेक्ट करेगा तो फिर ये लाइटनिंग को प्रोड्यूस करेगा और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसी को हम इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कहते हैं। और जो ये चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, और जब इस एक्यूमुलेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको थंडर कहते हैं, और जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसको हम लाइटनिंग कहते हैं। बस सिंपल एज इट इज़ फिर से समझते हैं। जब क्या लाइटनिंग की सिचुएशन डेवलप होने वाली होती है तो फिर हॉट एयर करंट्स ऊपर जाते हैं, रेन ड्रॉपलेट्स नीचे जाती है, चार्जेस सेपरेट होते हैं। ऊपर वाले क्लाउड्स पे पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाले में नेगेटिव चार्ज, दोनों का एक्यूमुलेशन प्रोड्यूसेस लाइट विच इज़ कॉल्ड लाइटनिंग एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। और फिर जो मेन पार्ट था चैप्टर का वो अभी ख़त्म हो गया है। बाकी सारा ऐसी नॉर्मल सोशल साइंस भरा हुआ है। और एक और चीज़ दी गई है आपकी बुक में, जो ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, ये क्लाउड और क्लाउड के बीच में भी हो सकता है, या फिर क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। तो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, लाइटनिंग सेफ्टी का मतलब, जब लाइटनिंग होती है तो फिर उसकी सेफ्टी, हम अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले जब लाइटनिंग होगी तो फिर हमको किसी सेफ प्लेस में जाना होगा और उस सेफ प्लेस में तब तक रहना होगा जब तक हमको लास्ट थंडर सुनाई ना दे। जब लास्ट थंडर होगा, आखिरी बार क्या होगा, जो साउंड प्रोड्यूस होगी लाइटनिंग की, उसमें थोड़ी देर तक इंतज़ार करना है। जब तक वातावरण शांत नहीं होता तब तक बाहर नहीं निकलना है। और सेफ़ प्लेस, मैंने क्या बोला, जब लाइटनिंग होगी तो सेफ़ प्लेस में जाना। सेफ़ प्लेस क्या हो सकती है? आपके घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, जहाँ पर छत हो, जहाँ पर आप चार तरीके से कवर हो, वो सेफ़ प्लेस है आपकी रहने के लिए। और अगर आप कहाँ पर हो, कार्स में हो या फिर बसेस में हो, तो फिर अपनी विंडोज़ को क्लोज़ करके रखना ताकि आप लाइटनिंग से सेफ़ रहो। अगर विंडोज़ ओपन है तो फिर आप लाइटनिंग के शिकार हो सकते हो। और एक और टॉपिक है आपकी बुक में, डू एंड डोंट्स, मतलब जब लाइटनिंग आएगी तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बाहर हमको जब लाइटनिंग की आवाज़ सुनाई दे तो मोटर बाइक्स और ओपन व्हीकल्स में ट्रैवल नहीं करना है। हमको ओपन फील्ड्स और टॉल ट्रीज़ पे नहीं आना है। देखो, जब भी हमको लाइटनिंग सुनाई देगी तो फिर हमको ओपन फील्ड पे नहीं चले जाना है, लंबी ट्रीज़ के पास नहीं जाना है, या फिर हमको एलिवेटेड प्लेसेस पे भी नहीं जाना है, क्योंकि जो टॉल ट्रीज़ होते हैं ना वो बहुत लंबे होते हैं। ठीक है,
जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लाइटनिंग होगी, तो फिर सबसे पहले चार्ज इसी पे पास होगा, तो फिर ट्री से वो आपके पास चले जाएगा। तो फिर ऐसी मूर्खता मत करना। और क्या क्या नहीं करना चाहिए हमको, हमको अम्ब्रेला, छाता, छाते को कैरी नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग लाइटनिंग। क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे माना बात, आप अम्ब्रेला में चल रहे हैं, लाइटनिंग पड़ी, तो फिर जो अम्ब्रेला का हैंडल होता है वो क्या होता है, मेटल से बना होता है, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फिर ये लाइटनिंग जो हमने इसको पकड़ी होगी हाथ से, तो हम भी भस्म हो जाएंगे। माना बात, लाइटिंग हो रही है, तो फिर अपने आप को सेफ कैसे रखा जाए? हम बाहर हैं, घर से बाहर है, कुछ नहीं है हमारे हमारे जगह पे, कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, तो अपने आप को सेफ कैसे रखें? सबसे पहले हमको दौड़ के जाना है एक ओपन फील्ड में। मतलब ओपन फील्ड में नहीं जाना, अगर हम ओपन फील्ड में हैं, जैसे मैंने बोला हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है, तो हमको अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं? तो फिर सेफ रखने की एक पोजीशन है, एनसीईआरटी में दे रखी है। वो कैसे है पोजीशन है, आपको बैठ जाना है अपने उस पे, अपने लेग्स पे मतलब झुक जाना है, बैठ जाना है, और अपने हेड को अपने नीज पे टच कर देना है। जब कभी आप लोग नाराज़ होते हैं, तो फिर जिस तरीके से आप लोग बैठते हैं ना, सबसे पहले क्राउच हो जाते हैं, स्क्वाट लो हो जाते हैं, तो फिर अपनी जो नीज़ पे अपने हेड को और हैंड्स को फोल्ड कर देते हैं। तो ये पोजीशन सेफ़ है। क्यों है सेफ़? इस पोजीशन से हमारा सरफेस एरिया लो हो रहा है, तो फिर जो लाइटनिंग को स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है। अगर सरफेस एरिया माना बात, आप 20 मीटर लंबे हो, मानो जैसे 20 मीटर लंबे हो, तो फिर आप पे लाइटनिंग स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आपका साइज़ डिक्रीज़ होगा, लाइटनिंग स्ट्राइक करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। मतलब सरफेस एरिया एंड लाइटनिंग आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अभी मैंने क्या बोला कि हम टॉपिक में थे, क्या डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अगर हम बाहर हैं तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, मैंने बता दिया। क्या करना चाहिए वो बता दिया। अगर हम अंदर हैं, इनसाइड है, जो समझते हैं इनसाइड है, तो कुछ भी कर सकते हैं, हम पूरे सेफ हैं। हमको टेलीफोन के, आजकल जो टेलीफोन होता नहीं है, पर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको शट डाउन कर देना है, मतलब प्लग हटा देना है उसका पूरा। और लाइटनिंग के समय मोबाइल फ़ोन को चला तो सकते हैं हम, पर उससे कॉल नहीं करना है, क्योंकि जब हम कॉल करते हैं ना, तो फिर इनविजिबल एनर्जी के चार्जेस ना एटमॉस्फेयर में जाते रहते हैं, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी से स्ट्राइक हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं वो चार्जेस। तो फिर एक ये रीज़न हो, ये नहीं करना चाहिए हमको। जब भी इलेक्ट्रिसिटी लाइटनिंग हो रही हो, तो हमको बात नहीं करना चाहिए, नहाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए भाई? क्योंकि बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम पानी से नहाएंगे तो हमारे ऊपर भी पानी आएगा, तो फिर हम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे। सो इतना ही था इस टॉपिक में। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग का मतलब समझ लिए। कंडक्टर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, पर ये लाइटनिंग कंडक्टर एक डिफरेंट चीज़ है, तो इसको समझते हैं। रुक जाओ थोड़ी देर। Lightning conductor is a device which is used to protect buildings from lightning। एक ऐसा डिवाइस जो बिल्डिंग्स को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है, उसे लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं।
तो इससे हम यही समझ गए होंगे कि ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये बिल्डिंग्स में इंस्टॉल होता है, बिल्डिंग्स में लगता है। आप कैसे लगता है, जैसे ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक बड़ा सा मेटल का एक रॉड लगा देंगे, एक बड़ा सा मेटल का रॉड लगा देंगे। आप लोगों ने अपने घर पे भी शायद से देखा होगा, बहुत लोगों के घर में लगा रहता है, पर ये उतना लंबा नहीं होता। इसको सारे बिल्डिंग, मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स में क्या होता है, ये मेटल का रॉड लगा रहता है, रॉड। तो फिर इसी को हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। तो फिर इससे ये पूरा अटैच हुआ रहता है यहाँ से, और ये अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। और इस अर्थ की सरफेस के नीचे यह एक कॉपर प्लेट है। तो फिर क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो फिर सबसे पहले लाइटनिंग इस मेटल रॉड पर, अगर बिल्डिंग पे माना बात लाइटनिंग पड़ेगी तो फिर वो लाइटनिंग सबसे पहले इस मेटल रॉड पे जाकर लगेगी। तो फिर ये मेटल रॉड के सहारे नीचे 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 पहुंचेगी, सीधा अर्थ में पहुंचेगी। और हमको पता है अर्थ इलेक्ट्रिक के चार्जेस को वो नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। तो फिर ये पूरा का पूरा लाइटनिंग फेल हो जाएगी, लाइटनिंग से कुछ बिल्डिंग में हार्म नहीं होगा, ये चार्ज अर्थ में पहुंच जाएंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या है, नेचुरल फिनोमिनन है। वो कैसे होता है, बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स अब होती क्या है, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम समझेंगे। जो ये टॉपिक है अर्थक्वेक्स का, ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, तो फिर हम इंट्रोडक्शन समझते हैं इसका। जो अर्थक्वेक्स होते हैं ना, बाकी सारे के सारे फिनोमिनन होते हैं, जैसे लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म हो गया, ये सारे के सारे प्रिडिक्ट करे जा सकते हैं। रेन भी प्रिडिक्ट करी जाती है, मतलब इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है वेदर फोरकास्ट के द्वारा। पर जो अर्थक्वेक होता है ना, ये अचानक होता है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसको हम पहले से पता नहीं कर सकते कि अर्थक्वेक आने वाला है। सुनामी भी होती है, सुनामी का भी पता रहता है कि आ सकती है, फ्लड भी की पॉसिबिलिटी होती है, पर अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी कभी नहीं होती। हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आएगा कब नहीं आएगा। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होता है ये ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत हार्म पहुंचाता है। और एक वन ऑफ द अर्थक्वेक का एग्जांपल है 8 अक्टूबर 2005 इन यूरी एंड टंगधार ऑफ नॉर्थ कश्मीर। नॉर्थ कश्मीर में यूरी और टंगधार टाउन्स है, वहाँ पर एक अर्थक्वेक आया था। वो इतना डिज़ास्टरफुल था, इसकी मतलब वो रेंज थी 6.8 समथिंग था उसका मैग्नीट्यूड। तो ये अर्थक्वेक आया इंडिया में, इतना डिज़ास्टरफुल था कि इसने तबाह कर दिया, पूरे ह्यूमन लाइफ को तबाह करके रख दिया। वहाँ पर जितने लोग रहते थे, बहुत लोगों को मारा, प्रॉपर्टी बिल्डिंग्स गिरी, बहुत वो हुआ। और एक सुनामी का भी एग्जांपल है जो इंडियन ओशन में आया था 2004 को। वो सुनामी कैसे हुई थी, वो भी अर्थक्वेक के कारण हुई थी, पर कब, अर्थक्वेक इनसाइड द ओशंस, ओशन के जो नीचे जो अर्थक्वेक होता है उससे मोस्टली सुनामी भी आती है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक का अर्थक्वेक होता क्या है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अर्थक्वेक क्या होता है, द शेकिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब ये सिंपल डेफिनेशन है कि अर्थक्वेक क्या होता है, द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस फॉर सम टाइम। अर्थ की सरफेस का शेक होना फॉर सम टाइम्स, उस अर्थ को कहते हैं। ये शेक कहाँ होती है,
क्रस्ट पे, जी अर्थ है, रुको जरा, अर्थ जो सबसे आउटर वाला रीजन है ये क्रस्ट होता है। उसके अंदर मेंटले होता है, इसके अंदर होता है आउटर कोर, इसके अंदर होता है इनर कोर। जो ये क्रस्ट है, जो ये क्रस्ट की सरफेस होती है, वहीं पर ही ह्यूमन लाइफ है। जो ये सरफेस होती है क्रस्ट की, ये पूरा एक प्लेन नहीं है, ये प्लेट्स में डिवाइडेड है, एक प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो फिर जब ये प्लेट्स की सरफेस हिलती है, ये तो मतलब यूजुअली हिलती रहती है, जो प्लेट्स की सरफेस है ये हमेशा हिलती रहती है, पर ये स्लो हिलती है। पर जब ये वाइगोरियसली लार्ज स्केल पे जब ये जोर से जब ये जोर से हिलती है अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स, तो उसी के कारण अर्थक्वेक होती है। एक और चीज़ आपकी बुक में दे रखी है कि जो ये प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, वो ऐसा नहीं होती, वो जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, तो फिर जो इनकी बाउंड्रीज, मतलब जो ये एरियाज़ हैं, ये इन एरियाज़ को हम वीक या फिर सेस्मिक जोन्स कहते हैं। क्यों कहते हैं वीक जोन्स? क्योंकि इन एरियाज़ पे अगर ये कोलाइड करी, माना बात, ये दोनों प्लेट्स आपस में ये अटैच रहते हैं, अगर ये कोलाइड करे, ये फोर्स लगाए एक दूसरे पे, तो फिर जो ज़्यादा संभावना है जहाँ पर ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा वो यहीं पर ही होगा, इन दोनों एरिया में होगा। इस एरिया में तो नहीं होगा ज़्यादा। तो इस एरिया में जो डिस्ट्रक्शन होगा, इन एरियाज़ को हम वीक या फिर सेस्मिक जोन्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्थक्वेक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। और एक और कहते हैं फॉल्ट जोन्स भी कहते हैं उनको। और इस सेस्मिक जोन का एग्जांपल है कश्मीर में, वेस्ट या फिर सेंट्रल हिमालयाज़ में है, और राजस्थान में भी है। तो फिर ये इसके एग्जांपल्स हो गए। जो अर्थक्वेक होता है, इसको हम क्या है, मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ होता है। जैसे हर एक मतलब क्या है, मतलब हर एक क्वांटिटी, चाहे वो स्केलर हो या वेक्टर हो, हम ये 9th में पढ़ेंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़, सबके पास मैग्नीट्यूड होता है, सबको एक न्यूमेरिक टर्म में एक्सप्रेस करा जाता है। तो अर्थक्वेक भी को भी हम एक मैग्नीट्यूड से, एक स्ट्रेंथ से, एक न्यूमेरिक टर्म से एक्सप्रेस करते हैं, और इसको हम मेज़र करते हैं रिश्टर स्केल से। रिश्टर स्केल में हम इसको, रिश्टर स्केल एक स्केल होता है मेज़रमेंट का, उसमें हम अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं। जैसे एक मैट्रिक स्केल होता है मेज़र करने का, वैसे एक रिश्टर स्केल होता है। जो मैंने आपको गलत बताया था, जो कश्मीर में आया था जो अर्थक्वेक, वो 7, उसकी मैग्नीट्यूड था 7.5 इतना था मैग्नीट्यूड उसका। 6.8 नेपाल में आया था एक, उसका था इतना मैग्नीट्यूड। मैंने आपको क्या बताया कि अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड में मेज़र करते हैं और उसका स्केल रिक्टर स्केल होता है। और एक डिवाइस जिससे सेस्मिक वेव्स का पता चलता है, उसे कहते हैं सेस्मोग्राफ। और जो ये शब्द है, ये सेस्मिक वेव्स, इसका मतलब है जो अर्थ की सरफेस में जो शेकमेंट होता है ना, वेव कैसे होती है, ऐसे होती है वेव। तो फिर जो अर्थ के मूवमेंट में जो ट्रेमर्स आते हैं, उससे जो एक वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो लाइन प्रोड्यूस होती है, उसी को हम सेस्मिक वेव कहते हैं। उसमें से सेस्मिक वेव को हम एक कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं, वो डिवाइस होता है सेस्मोग्राफ। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। यहाँ से गोंग लगाया, पेन लगाया, एक चार्ट। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पेंडुलम को लेंगे। उस पेंडुलम की जो बॉब होगा,
उस पर हम एक पेन की निप लगाएंगे, निप या फिर पेन को अटैच करेंगे। और ये एक चार्ट पेपर है, ठीक है। इस चार्ट पेपर को हम एक रोटेटिंग एक ड्रम पे लगाएंगे, जो कि रोटेट करते रहेगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये पेन इस पर चलेगा, जिससे जो चलेगा तो फिर ये वेव पैदा होगी, और उसी वेव्स को सेस्मिक वेव कहते हैं। इस वेव से हमको सेस्मिक वेव का पता चलता है। एक और फैक्ट है जो एक बॉक्स में दे रखा है एनसीईआरटी में, कि जो रिश्टर स्केल होता है वो लीनियर नहीं होता। लीनियर मतलब जो इसका रेशो होता है वो सेम नहीं होता। देखो समझाता हूँ। जैसे अगर कोई एरिया में एक अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड 2 था, और एक एरिया है जिसमें अर्थक्वेक आया है उसका मैग्नीट्यूड 4 था, ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि, माना बात, इन दोनों के बीच में जो अफेक्ट है वो 1000 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। जो लीनियर स्केल होते हैं, जैसे अगर 2 से और 4 के बीच अर्थक्वेक आया तो फिर उनमें डिफरेंट 1000 टाइम है। तो फिर अगर लीनियर स्केल में अगर 4 और 6 का आया, कोई अर्थक्वेक आया एक एरिया में 4 का, एक एरिया में 6 का आया, तो फिर उसकी डिस्ट्रक्टिवनेस सेम होगी, 1000 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। पर अर्थक्वेक जो रिश्टर स्केल है लीनियर नहीं है। अगर 4 और 6 के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक में डिफरेंस बहुत 1000 टाइम्स से भी ज़्यादा है, मतलब ये लीनियर नहीं है। अगर इसका रेशो निकाला जाए कि 2:4:6 इज़ नॉट इक्वल। अगर 2 और 4 के अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का अगर वो निकाला जाए डिस्ट्रक्टिवनेस, तो वो सेम नहीं है 4 और 6 का मैग्नीट्यूड के डिस्ट्रक्टिवनेस के बराबर। ये सिंपल सी चीज़ है। लास्ट टॉपिक आपका कि प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम अर्थक्वेक के दौरान। हमने लाइटनिंग का प्रोटेक्शन पढ़ा, अब अर्थक्वेक का पढ़ेंगे। जैसे हमको पता है कि अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम प्रिकॉशन तो ले ही नहीं सकते। पर तब भी अगर हम किसी बिल्डिंग में हैं अर्थक्वेक के दौरान, तो फिर हमको एक क्वैक सेफ जगह पे पहुंचना चाहिए। और ये क्वैक सेफ जगह क्या है, ये क्राइटेरिया दे रखा है। वो अगर अर्थक्वेक आया तो फिर हमको एक ऐसी जगह पे रहना है जो कि पक्का हाउस हो, मतलब वो मड से बना ना हो। दूसरा, हमको अगर अर्थक्वेक आया तो फिर हमको बेड के नीचे रहना सेफ़ है, कपबोर्ड से नीचे रहना सेफ़ है, और वॉल्स के आसपास रहना सेफ़ नहीं है। हमको ये भी केयरफुल रहना चाहिए कि जो वॉल में फ़ोटो फ्रेम है उससे भी दूर रहें हम, क्योंकि वो भी हम पे फॉल हो सकती है। और जो यही सारे हाउसेस हैं, यही सारे हाउस क्वैक हाउस कहलाते हैं। मैंने क्या क्वालिटीज़ बोली कि जो एक ऐसा हाउस जिसमें मड या फिर टिम्बर से बना हो, और उसकी जो छतें हैं वो बहुत लाइट हो, और जो उसकी अगर वो गिरे तो फिर भारी ना हो, और इसी हाउस को हम क्वैक हाउस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जापान में अर्थक्वेक आता है तो फिर वो ज़्यादा उतना वो नहीं कर पाता, डिस्ट्रक्टिवनेस नहीं फैला पाता, क्योंकि जापान में मोस्टली हाउस लकड़ी के बने रहते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अगर वो गिर गए तो फिर वो वापस बनाए जा सकते हैं, तो फिर उतना पैसे खर्च नहीं होते हैं। फिर जो क्वैक हाउस है ये इंडिया के आईआईटी रुड़की में एक बताया गया कि क्वैक हाउस कैसे बनाया जा सकता है। जो इंडिया है जो एक मिशन पे है कि हमको एक ऐसा हाउस बनाना है, ऐसे हाउसेस बनाने हैं जो अर्थक्वेक फ्री रहे, वो ऐसे लाइट मटेरियल से बना रहे ताकि हम सेफ रहे।
तो फिर हम ये तो हमने बताया, ये तो फ्यूचर की बात हो गई कि कैसे सेव हो सकते हैं। पर अगर आप नॉर्मल आदमी हो मेरे जैसे, तो फिर हम सेव कैसे रहे? अगर हम होम में हैं तो फिर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। टॉल या भारी चीज़ों से, जैसे आपका वो हो गया, आपका फ्रिज हो गया, उनसे दूर रहना चाहिए ताकि वो हम पे गिरे ना। और अगर हम बेड पे है तो बेड से नीचे नहीं आना, बल्कि बेड पे पिलो से अपना हेड को ढक देना है। पर अगर अर्थक्वेक 6 के मैग्नीट्यूड का हुआ तो फिर पिल्लो से ढकने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर भगवान जो चाहेगा वही करेगा, तो फिर इसमें कोई हमारा वो नहीं है। अगर हम बाहर हैं तो हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं? हमको एक क्लियर स्पॉट फाइंड करना है। जैसे एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया, पर अगर अर्थक्वेक हो, मतलब लाइटनिंग हुई, तब फिर क्लियर स्पॉट अच्छी लोकेशन नहीं है। पर अगर अर्थक्वेक हुआ तो फिर एक क्लियर स्पॉट पे जाना बहुत अच्छी वो है, अच्छी स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जब हम बहुत बड़े स्पॉट पे जाएंगे फिर अर्थक्वेक आएगा तो फिर हम बचे रहेंगे। क्योंकि अर्थक्वेक क्या डिस्ट्रक्टिवनेस फैलाता है, वो बिल्डिंग्स गिरा देता है जिससे लोगों की डेथ हो जाती है। क्लियर स्पॉट है, कोई ट्री नहीं, कोई वो नहीं, तो फिर वो गिरेंगे भी तो हम पे कुछ नहीं गिरेगा क्योंकि वो स्पॉट पूरी क्लियर है। अगर हम बस या फिर कार में हैं तो फिर हमको अपने विंडोज़ को क्लोज़ करके रखना है। हमको बाहर नहीं निकलना है जब तक वो पूरा अर्थक्वेक शांत ना हो जाए। और ड्राइवर को कहना है कि भैया एक ऐसी जगह पे ले जाओ जहाँ ज़्यादा कोलोनाइजेशन नहीं है, मतलब जहाँ पर ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं है। सो दिस इज़ फॉर द चैप्टर इज़ completed 56, मतलब 1 आवर का ही वीडियो समझ लो इसको। बड़ी मेहनत से पढ़ा है। ये चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तब भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से तो और चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट। सो और अ, और उसने और इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को तो बहुत 30 मिनट्स 26 मिनट्स ऐसे ही निपटा कर रखा है। पर तब भी मैं आपको हर चैप्टर को डेडिकेशन से पढ़ाता हूँ, तो फिर लाइक तो बनता है यार। लाइक करना है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, नहीं लगा तो मत करना। और डेट्स इट, बाय बाय।